हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, नो रूम फॉर लेपर्ड. So what this story is about? This story is about deforestation. It shows how people and nature interact, how human action can hurt animals. The setting of the story is in the hills near Mussoorie, where narrator enjoys the calmness of the forest and watching the animals. तो स्टोरी किसके बारे में है? डिफॉरेस्टेशन के बारे में है कि फॉरेस्ट कैसे ख़त्म होते जा रहे हैं और एनिमल्स के लिए जगह नहीं बच रही है. अपने मतलब के लिए कैसे ह्यूमन जो है वो नेचर को ख़त्म करते जा रहा है, फॉरेस्ट को ख़त्म करते जा रहा है, एनिमल्स को भी ख़त्म करते जा रहा है. तो इसका असर, इसका इम्पैक्ट सिर्फ एनिमल्स या नेचर पर ही नहीं होगा, आगे चल के ह्यूमंस पे भी होगा, लेकिन इसके बारे में वो अभी अनजान है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ समरी ऑफ दिस स्टोरी. One day what happened, while crossing a small stream, narrator sees leopard sitting on a rock. Narrator क्या देखता है? एक leopard है, वो rock पर बैठा है. The leopard has a golden orange fur and is looking into the distance. Then narrator claps his hands. The leopard quickly disappeared into the forest. So this movement creates a special bond between the man and the wild animal. जब narrator ने clap किया तो वो leopard जो है वो वहाँ से चला जाता है. अब यहाँ पर दोनों जन सेफ हैं. Then as the story progresses, the narrator describes the natural surroundings of the forest. He does that for highlighting its beauty, forest beauty, like how many different types of trees, plants, animals and birds exist there. So why he described all these things? So that reader can understand what a forest looks like when there is no human interference. जब human interfere नहीं करता तो फॉरेस्ट कैसा है, फॉरेस्ट कैसा दिखता है, उसका नेचुरल सराउंडिंग कैसा है. बहुत ब्यूटीफुल, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं. बट वंस ह्यूमन स्टार्ट इंटरफियरिंग द फॉरेस्ट चेंजेस. सो बाय डिस्क्राइबिंग द अनटच्ड फॉरेस्ट द नरेटर अलाउ अस टू कंपेयर इट विद व्हाट हैपेंस आफ्टर ह्यूमन इंटरफियरेंस. Just read this paragraph, you will understand how beautifully narrator has described a forest. Then in the following weeks, narrator becomes more aware of the leopard's presence in the forest. He doesn't always see it directly, but he senses it in a different ways. Like sometimes he hears its rough rasping cough from a distance, which can be a sign that leopard is nearby. मतलब उसका गुर्राने की आवाज़ सुनता है, या फिर कभी उसको फीलिंग आती है कि कोई उसे देख रहा है. He gets feeling that he is being watched. So as he continues observing the forest, he comes across the remain of a barking deer. तो जैसे ये फॉरेस्ट को इतना ज़्यादा ऑब्जर्व करता है तो इसको एक दिन एक डियर की लाश मिली. ठीक है, एंड दैट वॉज पार्शियली इटन एंड लेफ्ट अनकवर्ड. आधा ही उसको खाया गया था और उसको उसी तरह छोड़ दिया गया था. सो दिस इज अनयूजुअल फॉर अ लेपर्ड बिकॉज normally leopard hide their prey to protect it from scavengers. So what this suggests that something or someone disturbed the leopard while it was feeding, obviously hinting at possible human interference in the wilderness. तो क्या हुआ था, जो डियर का रिमेनिंग पार्ट था, मतलब कि जो बॉडी था वो आधा खाया गया था लेपर्ड के थ्रू और आधा छोड़ दिया गया. तो नॉर्मली जो है ना, लेपर्ड जो बॉडी को नहीं खाता उसको वो छुपा के रखता है, लेकिन वो ऐसे ही खुला हुआ था. तो ये क्या सजेस्ट करता है कि जब लेपर्ड खा रहा था तो कोई उसको डिस्टर्ब किया. सून द पीस ऑफ द जंगल इज शैटर्ड बाय द अराइवल ऑफ शिकारीज हु सीक to kill the leopard for its valuable skin. So peaceful jungle is disturbed when hunters arrive looking for the leopard to sell its skin for a high price in Delhi, despite a ban on its trade. तो शिकारी जो जंगल में आए थे लेपर्ड को ढूंढने के लिए, वो क्यों आए थे? ताकि वो उसे मार के उसके स्किन को दिल्ली में बेचे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके. They ask the narrator if he has seen the leopard, but he denies knowing anything. नरेटर ने सीधा मना कर दिया कि उसने लेपर्ड को नहीं देखा है. This revelation fills the narrator with unease as he realizes that the leopard's survival is now under threat. मतलब जब शिकारी उसे ढूंढ रहे थे, उसको नरेटर को तो पता चल गया इस बारे में कि अब ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अब लेपर्ड का जो लाइफ है वो डेंजर में है. As hunting activity increases, the atmosphere of the forest changes. The once lively jungle becomes eerily silent. Eerily means बहुत ही भयानक तरीके से साइलेंट हो गया. सो व्हाट नरेटर इज सेइंग दैट वंस द हंटिंग इंक्रीजेस द फॉरेस्ट ग्रोज साइलेंट एज बर्ड एंड एनिमल्स रिट्रीट इन फियर. द नरेटर सेंसेस द लॉस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन हिमसेल्फ एंड द वाइल्ड लाइफ एज द एनिमल्स नो लॉन्गर परसीव हिम एज अ हार्मलेस ऑब्जर्वर but as potential threat
just like the hunters. So the narrator feels a loss of trust with the wildlife. जो पहले जब नरेटर लेपर्ड को देखता था, उसे क्लैप करता था, तो लेपर्ड वहाँ से चला जाता था. तो एक तरीके का वो एक ट्रस्ट था उन दोनों के बीच में कि ये लोग एक दूसरे को कुछ नहीं करेंगे. लेकिन अब जब वाइल्ड लाइफ नरेटर को देखता है तो वो ट्रस्ट नहीं है. उसे वो एक हार्मलेस ऑब्जर्वर नहीं दिखता, बल्कि एक हंटर दिखाई देता है. वन डे ही वेंचर्स अप Paritibba, a desolate rocky hills with ruins of an old settlement. As he walks through the abandoned structures, he is struck by the absolute silence surrounding him. There are no birds, no rustling leaves, only heavy stillness. Soon he detects a strong feline scent, leading him to suspect that the leopard has made its lair in the dark recesses of the ruins. Though he cannot see the animal, he believes it is watching him, recognizing him as a familiar presence in the forest. He chooses not to intrude further, believing that he has gained the leopard's trust. However, he also fears that by becoming too accustomed to humans, the leopard may have put itself in grave danger. So what is given here? One day, narrator climbs Paritibba. It is a name of a rocky hill. There he feels डीप साइलेंस. वहाँ पे नरेटर को क्या फील हो रहा था? एकदम साइलेंस फील हो रहा था, सन्नाटा फील हो रहा था. वाई? बिकॉज देर वॉज नो बर्ड्स, देर वॉज नो रस्टलिंग लीव्स, बट ही स्मेल्स अ स्ट्रॉन्ग फिलाइन सेंट एंड सस्पेक्ट्स अ लेपर्ड लिव्स देयर. फिलाइन मीन्स कनेक्टेड विथ कैट फैमिली, मतलब उसको फिलाइन सेंट फील हुआ, मतलब कि जो लेपर्ड्स होते हैं, टाइगर्स होते हैं, इनका स्मेल फील हो रहा था. ही ऑल्सो फील्स द लेपर्ड इज वॉचिंग हिम एंड ट्रस्ट हिम. And he avoids disturbing it but worries that trusting humans might put the leopard in danger. तो नरेटर को लग रहा था कि लेपर्ड उसे देख रहा है और उसने लेपर्ड को इग्नोर किया. उसने सोचा कि लेपर्ड को अब वो डिस्टर्ब नहीं करेगा उसे देखकर. लेकिन साथ ही साथ उसे ये डर भी लग रहा था कि लेपर्ड उसे देख रहा है फिर भी उस पर अटैक नहीं कर रहा है, मतलब वो ह्यूमन पे ट्रस्ट कर रहा है और ये ट्रस्ट उसके लिए डेंजर हो सकता है. द नरेटर्स वर्स्ट फियर्स कम ट्रू द फॉलोइंग डे व्हेन ही एनकाउंटर्स द हंटर्स रिटर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीडिशन. तो जिस चीज़ का डर था वो हो गया, मतलब जिस चीज़ से वो डर रहा था कि ये इतना फैमिलियर हो रहा है ह्यूमन से, तो इनके लिए वो चीज़ डेंजर है. तो यहाँ पर नरेटर ने क्या देखा कि वो जो हंटर थे एक लाइफलेस बॉडी लेकर जा रहे थे. किसका? लेपर्ड का. एक बाम्बू के पोल पर उसे लेकर जा रहे थे. इट्स गोल्डन कोट नाउ मार्ड बाय गन शॉट वुंड्स. तो यहाँ पे नरेटर बता रहा जो लाइफलेस बॉडी था वो किसका था? लेपर्ड का था, जिसका एक सुंदर सा गोल्डन फर था. अब वो पूरी तरीके से जख्मी है, पूरा खून से लथपथ है. द शिकार इज बीमिंग विथ प्राइड, कॉल इट अ फाइन स्पेसिमेन एंड सेलिब्रेट देयर सक्सेस. तो इसको क्या लोग एक सैंपल समझ रहे थे कि बहुत ही अच्छा काम किए ये लोग ने. लेपर्ड इनके लिए एक तरीके का सैंपल है जो ये लोग दिल्ली भेजेंगे, अच्छा प्राइज मिलेगा. तो ये सब देख के नरेटर एकदम दुखी हो गया. इनफैक्ट शिकारी ने नरेटर को पूछा भी कि कितना अच्छा स्पेसिमेन है कि नहीं है, तो वो एकदम ही अपसेट टोन में बोलता है, येस इट वॉज अ ब्यूटिफुल लेपर्ड. As he walks home, the forest around him seems heavier with sorrow, the silence now a mournful lament for the loss of one of its own. He recalls a line from a D.H. Lawrence poem, "There was a room in the world for a mountain lion and me." The words echo in his mind, reinforcing the painful realization that the world is steadily losing space for wild creatures due to human encroachment and ग्रीड. जो ह्यूमन का प्रॉपर्टी या फिर एरिया को कैप्चर करने का जो लालच है, उसके वजह से वाइल्ड क्रिएचर्स जो है अपना स्पेस खोते जा रहे हैं. सो वी कैन सी दैट दिस पैसेज कन्वेज narrator's sorrow over the loss of a wild creature. He is also worried about shrinking space for nature due to human greed. ओके नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन. तो स्टोरी यहाँ पे एंड हो गई है. लास्ट में क्या होता है, लेपर्ड को शिकारी लोग मार देते हैं और नरेटर बहुत दुखी होता है कि ह्यूमन जो है अपने नीड के लिए, अपने ग्रीड के लिए, अपने शौक के लिए वाइल्ड लाइफ को ख़त्म करते जा रहे हैं. थ्रू दिस मूविंग टेल रस्किन बॉन्ड प्रेजेंट्स अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ ह्यूमन इंटरफियरेंस इन नेचर. The story highlights how trust between humans and wildlife can be broken and how the relentless pursuit of profit leads to the destruction of beautiful and irreplaceable creatures. No Room for a Leopard serves as a reminder of the need for conservation and respect for the natural world before it is too late. Now let's have a very short discussion on the title of this short story, No Room for Leopard. So what can be the meaning of this title?
no room for leopard. It does not refer to a physical room in which we live, but rather to the leopard's natural habitat, that is forest, jungle. And due to human interference, the leopard no longer has space to live freely, no longer has its रूम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।